Mala, so I manage. Jai Hind and welcome to Adi. Dev Talk. This is Adi Achint. Today's interesting episode is the story of the 1962 war. आज जो हम लोग बात करेंगे 1962 में हुआ क्या था, किसकी थी गलती और क्या थी असली कहानी. What is the story behind this? इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हमको पता नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे सामने हैं. एंड आज क्योंकि चीनी चाइना के साथ आपका थोड़ा सा हमारे टेंशन हैं, उस चक्कर में भी बहुत सारी चीजें बाहर निकल भी रही हैं धीरे धीरे करके. मेरे साथ हैं कर्नल अजय रैना जो हमको 1962 की पूरी स्टोरी बताएंगे. सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी. इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी. लेट्स बिगिन सर. Yeah, thank you, Adi, and good evening to everybody. 1962 is a very big, long story. Can you hear me, Adi? Your frame is frozen. Hello, Yeah, hello, I can sir, please hello, go ahead. Hello. Please go Adi, ahead can sir, you I hear can me? hear you. I can sir, please go ahead. Hello. I can sir, please go ahead. Okay, you can hear me. Yes sir. Achha, I thought I lost I you. think Okay, can you sir hear is me in once again? Let Srinagar, me check. so sir is in Srinagar, so there's a bit of a challenge with Sub issue. the network. I've still had sir join us, so just bear with us for a moment before we restart this बड़ी जबरदस्त कहानी ऑफ 1962. थोड़ा सा आई थिंक नेटवर्क में चक्कर चल रहा है ये तो. अब श्रीनगर में नेटवर्क आई थिंक पूरी तरह से पहुंचा नहीं है, सो वी एक दो मिनट वेट करते हैं सर का ज्वाइन करने के लिए. 1962 द स्टोरी. 1962 वॉर की जो मेरे को आई मीन मैं थोड़ा सा जब तक सर आते हैं आई जस्ट स्टार्ट अ लिटिल बिट. जो दो मेन थिएटर्स थे, जो दो मेन एरियाज थे जहां पर वॉर हुई है, which is the eastern sector जहां पर अरुणाचल. and okay, sir is back, we'll just try and get him back into the system. अरुणाचल एंड दूसरा था of course the Ladakh sector. Yeah, uh, Adi, is it okay? हाँ जी sir, we can hear you and see you. Okay. Adi, if your request is in case you find my voice breaking, just do this so I'll know. Done sir. Is that okay? Perfect. I can't hear you, Adi. Yes sir, please go ahead. Perfect. Okay, I'll start. Can you hear me? Yes sir. Actually, your frame is frozen. Okay, I'll speak in case. Yeah, now I can see you finally. Right. Adi, this 1962 is a very very long story. और इसको समझने के लिए ना Oh, this is not happening. एवरी टाइम कोई इंटरेस्टिंग चीज हो रही हो और हमको हमेशा नेटवर्क की प्रॉब्लम्स होती हैं. इट इज क्वाइट सैड दैट आई थिंक या मंदर वीडियो डिसेबल करके विल डू द टॉक, बिकॉज ये स्टोरी है जो बड़ी इंटरेस्टिंग एंड वी नीड टू नो दिस. एंड सर हैज डन क्वाइट अ बिट ऑफ रिसर्च इसके ऊपर, सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू हियर दिस स्टोरी. Adi, I have changed places thrice in the same room. Now it's बट okay? दिस perfect and clear sir. Let's go. Okay. बढ़िया Sorry है for सर. all the trouble. अरे नो प्रॉब्लम सर, लेट्स अभी शुरू करते हैं. Happened in Srinagar, Kashmir. Okay. So, my request to the viewer would be that if you have time and patience, please read about something called Opium Wars and Boxer Day conflict. So, if you want to understand why Chinese don't like Indians and what issues they had with British, so that is a long story. I leave out that part. That is 1840s and 1800. So we come to the last century. So kahani begins. हाँ, can आवाज आ रही? आई कैन सर. मैं एक ही चीज Okay. बोल रहा था, थोड़ा इंग्लिश में करते हैं सो दैट वी कैन Okay. नहीं यहीं नहीं से हिंदी लाकर. हिंदी I'll switch over. तो 1914 में ना शिमला में एक बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ था. ब्रिटिश के अगर आप देखेंगे ना, दे वर रूलिंग द वर्ल्ड एंड दे ऑलवेज वर इनसिक्योर. सो रशिया से इनसिक्योरिटी थी, तो दे हैड अफगानिस्तान एज अ बफर स्टेट. चाइना वाज
kind of rising power, they could predict that in times to come, China will have issues. And like I told you, when you read about Opium War 1 and 2 and Boxer Day and Indian troops and Britishers commanding Indian troops going and burning the biggest palace in the world in China, there's a long story. So Chinese के साथ issue तो था British का, so they wanted to have another buffer, and that buffer was Tibet. So 1914 में, after a lot of hassles left and right with Tibet, there was an agreement in Shimla, जिसमें boundary was decided, and the MacMahon thing came into being in 1914, which basically demarcated border along so-called NEFA, which is Arunachal now. LAC, as you know, in Ladakh, it is basically based on 1846 treaty after General Zorawar Singh died. So there was a treaty next year after a small revolt in Ladakh, whereby Tibet, China, and J&K state that time under Maharaja Ranjit Singh, they took a decision, hereafter we will not violate this traditional boundary. So that is LAC. How India perceives it and how China does it, that is a separate thing. But so NEFA में MacMahon line हो गया. So जब ये treaty sign की गई, तो Tibet वाले लमा का जो rep था, he signed, British rep signed, and Chinese वाला जो rep था, he refused to sign, but he initialed under pressure. बाद में, as usual, China said, I don't accept. A initial carries no meaning. Now, after when independence was approaching, India became a natural inheritor of that treaty. So as per that, the watershed which runs in NEFA, the watershed is basically what? A line of feature यहाँ से पानी नीचे आता है. So होता ना पहाड़ों पे, it's like a kind of a long range and ridge, and so watershed we all understand very well. So MacMahon line बन गई, सब कुछ हो गया, लेकिन 1932 में जो तवांग का एरिया था, ब्रिटिश ने पहली बार वहां पे लाइट फुट एक्सपीडिशन भेजा, एंड तवांग को दे सेड की इज पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया. सो अरुणाचल पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया, टिबेट इंडिपेंडेंट, एंड बियॉन्ड दैट चाइना. तो चाइना वाज नेवर आवर नेबर इनिशियली. अभी हुआ क्या कि 19 जब वर्ल्ड वॉर 2 लगी शुरू हुई, तो टिबेटियंस सॉ ब्रिटिश कि वो तो उनकी जापानीज से लड़ाई शुरू हो गई. सो टिबेटियंस quietly came and sat in Tawang. This happened in 1942. But they were observing World War II very closely. So जब उनको पता लगा कि British are going to win the war, are going to be better than Japanese, तो 1944 में चुपचाप वो तवांग छोड़ के चले गए. They went back. So why I'm trying to say this is that while we keep blaming Chinese, rightfully so, for aggression and intrusions and all, Tibetans एम्पायर सो कॉल्ड टिबेटियन स्टेट जो थी, वो उसको भी ये इशू था कि अरुणाचल हमारा है. इनफैक्ट जो आज की ताइवान सरकार है, दे स्टिल इन देयर डॉक्यूमेंट्स अरुणाचल इज पार्ट ऑफ देयर टिबेट. वी मे हैव फैंसी आइडियाज कि कल को ताइवान बन जाएगा और ये चाइना चला जाएगा, वो आके भी सेम गाने गाएंगे, बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ द डीएनए और कल्चर. सो टिबेटियन केम एंड देन वेंट बैक. सो दिस वाज 1945 जब व्हेन इंडिया, एंड दैट वाज आल्सो अ टाइम जब जो पहले वाला चाइना था, बिफोर कम्युनिस्ट केम, that ROC, they were heavily involved in creating of UN. जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद या लीग ऑफ नेशन फेल हो गई वर्ल्ड वॉर 1 वाली, it couldn't maintain peace in the world, so they came up with the idea of UNO, which United Nations. So इसकी फॉर्मेशन में जो 5 कंट्रीज थे, उसमें this China had a major role to play. That's a reason China became one of the permanent members. Now that was also a time when a civil war was starting in China between communists and those guys. Now 1947 came, we got independent. At that time our policy was that yes, Tibet is a region by itself, but it was under suzerainty of China. Suzerain tha wo China ka. China was separate, but suzerain and sovereignty में ये फर्क होता है कि if I am I am under somebody's sovereignty, that means मेरा सारा मालिक वही है. सुजरेनिटी में होता है कि फॉरेन अफेयर्स और 2-4 चीजें छोड़ के बाकी सेल्फ रूल्ड. That was India's position about Tibet in 1947. Now as 1950 came, 1949 में क्या हुआ, नेहरू जी announced कि our only enemy is Pakistan. This was the stated policy of government of India. China we have no threat, because China में civil war चल रही थी. So to some extent we can grant कि okay ठीक है, we perceive no कि वो लड़ रहे हैं मर रहे हैं आपस में. What is happening in Pakistan today? Something similar was happening in China between communists and others, the previous government. And then they said कि हमें फौज की जरूरत नहीं है,
we are peace loving nation, we work towards world peace, only police will be okay. Because जो हमारा first commander in chief था Lockhart, when he put up the India's defense policy to the Prime Minister Pandit Nehru, he threw it away. He says defense policy, we are not going to fight wars with people. When we don't want to fight wars, why should we have a defense policy? We don't need army. That was actually the official position taken by Nehru Saab. So I grant him his experience or whatever circumstances. So today we can look back and criticize, but this is what he said, and we know what I have. अब 1949 में क्या होता है कि जब ये when we were saying this कि हमें आर्मी नहीं चाहिए, ये हुआ, सिविल वॉर खत्म हो गई और सिंकियांग कैप्चर कर लिया चाइना ने, which was not part of China earlier. So जब सिंकियांग में जाके चाइना ने ऑक्यूपाई किया तो थोड़े से यहाँ पे अलार्म्स बेल बजनी शुरू हो गई कि हो सकता है कि तिब्बत में कुछ हो. और नेक्स्ट ईयर 1950 इन द मंथ ऑफ February in Kalimpong, India hosted a meeting between Tibetans and Chinese, because Tibetans and Chinese का शुरू से ही आंकड़ा 36 का रहा काफी देर से. In that Chinese rep said कि भाई ये सुजरनिटी वगैरह मुझे समझ नहीं आती, सॉवरेनिटी पे आ जाओ. If you don't become our part of us, then we will invade you. This happens in February 1950 and happens at Kalimpong, West Bengal. उसके बाद जो हमारे IB चीफ थे मिस्टर BN Malik, he wrote a note and put it up to Pandit Nehru saying कि भाई ये जो इनकी बातचीत हुई है इसमें लग रहा है कि there will be some trouble between China and Tibet in days to come. So let's decide our future course of action. Many people, when they look at the people culprits of 1962, Nehru है, Menon है, so जनरल थापर भी हैं, जनरल सेन भी है, बड़े कुछ हैं, उसमें जनरल इसका मिस्टर BN Malik का नाम भी आता है. But historical records, and I'm quoting from something very authentic, that in soon after a meeting, he apprised the Pandit Prime Minister, and in that meeting, Pandit Nehru, Raksha Mantri was Sardar Baldev Singh, Menon was a foreign secretary at that time, and Commander in Chief of Indian Army was General Cariappa. So these guys were sitting, and then Patel was not made a part of that meeting. And even Shyama Prasad Mukherjee, who used to be part of cabinet as industry ministry, ministry was left out. So इसमें जब discussion हुआ है, so because Pandit Nehru always wanted only people with whom he was comfortable. So जब discussion हुआ है तो उसमें बोला गया कि भाई what is the status? तो status ये था कि पूरे नेफा में 5 नॉर्थ ईस्ट में 5 असम राइफल्स की battalions थी, 1 2 3 4 5. Out of that, 2 battalions were deployed along Nefa in 24 platoons. Now this Nefa is about 570 kilometers. No, 24 platoons. Now you can imagine in that terrain, no laterals, no connectivity, nothing. So when these things were put up, and Pandit Nehru said, "What should we do?" So Malik said, "USA and UK, because Korean War was on 1950, 51, 52, 53. तो चाइना और यूएसए का लफड़ा था, जैसे आज है, वो नॉर्थ कोरिया के साथ था, चाइना वाज यूएसए वाज साउथ कोरिया. And US and UK, as per General Malik's notes during the meeting, it is said that they say we are ready to help you, but हम ना we will not put boots on ground, जो आजकल की टर्मिनोलॉजी है, हम आपकी हेल्प करेंगे. USA went to the extent of saying कि we will be able to lift a brigade of Indian Army into Tibet. जब भी चाहिए होगा हम इतना कर देंगे, लेकिन we will not fight for you. That was logical. Despite this, when General Cariappa was, I mean, उनका नंबर आया बोलने का, उन्होंने कहा ऐसा भाई कि हमारे पास ट्रूप्स नहीं है, we don't have troops, and maximum अगर आप मुझे ऑर्डर देते भी हो तो मेरे पास I'll be able to spare 600 people men, just a battalion minus, not even a full battalion, and हम उनको तिब्बत में पहुंचा तो देंगे, we will not be able to maintain them, because 47, 48, 49 जो हमने 3 साल हमारी जो पॉलिसी थी कि फौज की तरफ देखना ही नहीं है, so we didn't build up our logistics, we didn't raise new units. इनफैक्ट अगर आप पढ़ोगे इसको, यूएस का जो फोकस था चाइना तिब्बत पे, there was a time when US later on said raise 150 brigades. They told India आप 150 brigades raise करो and then we will fight in Tibet. So that was a quantum which was as per US planning. हम उसको आधा ही कर लेते पर हमारे पास वो भी नहीं थे. तो कृपा सेठ भाई हम लड़ नहीं सकते, इट्स बेटर यू डिप्लोमेटिकली और पॉलिटिकली इसको थोड़ा सा करो. और इतने में चाइना घुस गया तिब्बत में 1950 में.
अक्टूबर इज वेरी सिग्निफिकेंट इन इंडो चाइना रिलेशंस. हर चीज अक्टूबर में होती है, तो 50 में भी अक्टूबर में घुसा था. एंड लुक एट इट, अभी मीटिंग हो गई, मजबूरी भी थी कि ट्रुप्स थे नहीं. आरएसएस एंड ऑल राइट विंगर्स स्टार्टेड शाउटिंग कि इंटरवीन इंटरवीन इंटरवीन. आर्मी सेड हमारे पास बंदे नहीं है. कम्युनिस्ट इन इंडिया स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग. इन्वेजन ऑफ तिब्बत वाज सेलिब्रेटेड बाय कम्युनिस्ट इन इंडिया बिकॉज उनके बड़े भाई ने तिब्बत में अटैक कर दिया था. एंड देन तिब्बत में अकाल पड़ गया बिकॉज चाइनीज थे 2 लाख. तिब्बत की जो टोपोग्राफी थी, जो वहाँ पे क्लाइमेट था, जो वहाँ पे क्रॉप कल्चर था, उसमें इतने लोगों को सस्टेन करने की देयर वाज नो वे दे कुड सस्टेन दैट कुड काइंड ऑफ फोर्स. तो फिर इंडिया ने प्रोटेस्ट किया पहले. एंड देन राइस, तिब्बत में चाइनीज ट्रुप्स को राइस जो था वो इंडिया ने सप्लाई किया था. So look at the confusion in our mind. We were not happy that China had intruded into Tibet, and we supplied them rice to sustain their troops. So now you call it confusion or you call it whatever. I don't know what to say. So this is how we handled invasion of Tibet in 1950. You say you're frozen again. नहीं सर, प्लीज Can you कंटिन्यू. hear me? मैं थोड़ा, हाँ प्लीज कंटिन्यू सर. अच्छा, जब ये हुआ तो सरदार पटेल ने और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने प्रेशर डाला प्राइम मिनिस्टर पे, भाई ये क्या कर रहे हो, आज वो वहां हैं, कल वो इंडिया में घुसेंगे. Because like Tibetans, Chinese will again start claiming Eastern Ladakh and Arunachal as part of Tibet. तो उन प्रेशर पे आके नेहरू जी ने एक प्रोटेस्ट लेटर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट अ रिटन प्रोटेस्ट टू चाइना. And as Shivnal Verma in his book 1962 A War wasn't, he mentions that China was so happy कि this is the only reaction India is going to give. They were actually expecting कि इंडिया आके हमारी ऐसी की तैसी करेगा, बिकॉज उससे पहले लासा से लेके we had 3 or 4 posts, army manned posts. Indian army had posts inside Tibet, including Lhasa. They were infantry based, small. I mean, they were not battalions. They were just sections and platoons. So Tibet का जो रिलेशन था यंग हस्बैंड का, अगर आप पढ़ोगे उसके बाद, उस एक्सपीडिशन के बाद, इंडिया हैड दीज 3-4 पोस्ट इन टिबेट. प्लस जो जेएनके के महाराजा का जो रिचुअल था, वी आल्सो हैड अ पोस्ट इन द ईस्टर्न लद्दाख, जो हमने 47 के बाद वेकेट कर दी, छोड़ दिया. तो शाहदोला, आप कभी सर्च करना तो यू कम टू नो कि शाहदोला एक ऐसी जगह है जहाँ पे चाइना वाज देयर एंड देन दे फाउंड शाहदोला में कोई नहीं, वो इधर आ गए. सो जो क्लेम लाइन 1 एंड क्लेम लाइन 2 बाद में बना. सो दिस इज हाउ इट स्टार्टेड. इतने में क्या हुआ कि सरदार पटेल ने अपनी डेथ से 40 डेज पहले एक लेटर लिखा पंडित नेहरू को. जस्ट 40 डेज बिफोर ही वाज टू डाई, ही सेड वी मस्ट लुक एट चाइना लाइक अ पोटेंशियल एनिमी. तो नेहरू जी ने उनके ऑनर में एक हिम्मत सिंह जी कमेटी, ब्रिगेडियर हिम्मत सिंह जी होते थे, उनकी एक कमेटी बनाई कि भाई स्टडी क्या करना है, नेफा में क्या करना है और लद्दाख में क्या करना है. तो उसकी शुरू हो गई स्टडी चलती रहती है, इतने में पटेल की डेथ हो गई. लेकिन मरने से पहले उन्होंने एक काम किया. ही केम टू नो कि तवांग में जो वाइल्ड टिबेटन्स हैड कम एंड गॉन बैक आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, अभी 50s में आके दे हैड स्टार्टेड टेकिंग टैक्स फ्रॉम तवांग. सो तवांग के जो लोकल थे लामास, दे स्टार्टेड कंसीडरिंग देमसेल्व्स टू पार्ट ऑफ टिबेट. उस जमाने में तो यही था ना, जिसको टैक्स देना उसकी सरकार है. सो हमारा कोई था ही नहीं वहां पे. सो देयर इज अ ऑफिसर कॉल्ड मेजर बॉब खातिंग. इसकी बुक भी आई है बड़ी अच्छी, यू मस्ट रीड. दीज आर आवर हीरोज, वी डोंट इवन नो देयर नेम्स. सो जो गवर्नर था असम राइफल जो थी, इट वाज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. नेहरू जी वाज आल्सो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. नाउ इमेजिन हमारे जयशंकर और नेहरू जी, यू कैन ओनली डू सम कैलकुलेशंस. तो नेहरू जी के अंडर था, बिकॉज एमईए के अंडर थी असम राइफल्स, और उसकी जो मैनेजमेंट थी दैट यूज्ड टू बी डन थ्रू गवर्नर ऑफ असम. सो गवर्नर ऑफ असम वाज मिस्टर दौलत राम. ही वाज क्लोज टू सरदार पटेल साहब. तो पटेल टोल्ड हिम कि भाई send somebody and let's take तवांग back, otherwise तवांग हमारे हाथ से निकल जाएगा. So Bob Khating with some troops of Assam Rifles, he goes to तवांग. Nehru साहब is not aware कि what's happening. वो जमाना भी अलग था. I mean, there was no social media, there was no email. So he goes to तवांग, he addresses people, he says you are part of India and I have come to exert our authority over you. तो वहां पे confusion हो गया. तिब्बतियंस जो थे उन्होंने अपना एक जुलूस, they called for a kind of a congregation. और जो लामा थे अरुणाचल वाले, वो न्यूट्रल, बिकॉज उनको पता, दे न्यू, बोला इंडियन आर्मी चली जाएगी फिर हमें तिब्बतियन आके पिटाई करेंगे.
So they sat on the fence. So Bob Khating ने देखा जब कुछ नहीं हो रहा, he gave an order, ₹5 per house per year tax गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आप पे करोगे, and he told Tibetans run away from here, I will kill you. चाइना से ऊपर से मैसेज आया हुआ था, तिब्बत से, लासा से, चाइनीज का, इनको जो टिबेटियन वहां पे थे टैक्स कलेक्टर्स, की यू स्टे ऑन, बट बाब खातिंग के प्रेशर में आके दोज पीपल वेंट. सो दिस इज 1951. सो सेम ईयर व्हाट चाइना डिड, दे अंडरस्टूड कि अभी तवांग तो अपने हाथ से निकल गया. तो तवांग के ईस्ट में, आई मीन ईटानगर, और एक जगह आती है पासीघाट अरुणाचल में, इफ यू लुक एट द मैप, तो सियांग फ्रंटियर है. सियांग इज बेसिकली, ब्रह्मपुत्र इज कॉल्ड सियांग इन इनसाइड अरुणाचल प्रदेश. वहां पे दे इंट्रूडेड देयर एजेंट्स who through way of gifting people, paying money, like China does, they kind of created a scene there where locals started singing Chinese songs. So एक पेट्रोल पार्टी भेजी गई with 24-25 जवान. Oh, right in the middle of जब बोलते हैं ना एकदम स्टोरी जब हीटेड अप हो रही है तो the network has to play a trouble, but not to worry, sir is back, we will get him back. You have to be, where are we? What was the last you heard? Sir, let's start with that सियांग वैली and उसके बाद से आगे चलते हैं सर. ओके. हाँ जी. एक मेजर आरडी सिंह थे, उनके साथ 23 जवान ऑफ असम राइफल्स and about 150 officials of police were sent to investigate कि सियांग में हो क्या रहा है. When news started coming out कि सियांग में कुछ issue है, तो all of them were hacked by locals, hacked to death. This happens in again October of 1951. और फिर Indian Air Force took 2 months to ferry troops there, and then the guy was sorted out. December 1951 में जाके that area came under control. Meanwhile, Pandit Nehru came to know about Bob Khating's action in Tawang. So first thing he did, he told governor to fly to Delhi and gave him a mouthful. And he gave an order to Bob Khating, you stop your activities, but he didn't. Bob Khating carried on. Like we were discussing in 47-48, there are times when there were so many examples, General Sagar Singh and General Harbakh Singh and so many all over the world, जहाँ पे political orders को soldiers ने disobey किया in the interest of the country. So Bob Khating did that. कि उसने पूरा तिब्बत को खाली करवा दिया तिब्बतियन से तवांग. So तवांग अगर आज हमारे पास है, it is because of Bob Khating. Otherwise, we were happy giving it away. So अभी उसके बाद 1953 में जनरल करेपा रिटायर्ड, तो जनरल राजेंद्र सिंह जी became the new chief. And उसी टाइम पंचशील एग्रीमेंट साइन किया पंडित नेहरू ने विथ चाओ एन ले, जो प्राइम मिनिस्टर था. And in that Panchsheel agreement, we will coexist, we will be very good neighbors and all. Panchsheel actually means about, in Tibetan Buddhist language, Bhoti language, it means 5 sins or something, I'm forgetting. It's not what we feel. Panchsheel we feel is 5 principles of coexistence. No, it has a different meaning in Bhoti language, which actually it is, जो किया उसने चाइना ने. तो Panchsheel agreement sign कर दिया. Since Malik was one person who had been warning Pandit Nehru time and again, he was kept out of loop. आईबी को भी निकाल दिया. पटेल had already gone across the bridge. So पंडित नेहरू said कि यार ये बंदे ठीक नहीं है, they are offensive and we should maintain good relations with China. So उन्होंने पंचशील साइन कर दिया और उसमें एक्सेप्ट कर लिया कि जो तिब्बत में चाइना बैठा हुआ है बिल्कुल सही बैठा है. So India has no problem now sharing borders with China. So this is 1953. उसके बाद जितनी पोस्ट थी इंडिया की, लाइक ऐसे लासा में एक पोस्ट थी, यांगसे में पोस्ट, ऑल दोस पोस्ट वर विड्रॉन एज पार्ट ऑफ पंचशील. सो जो हमारा छोटा मोटा क्लेम था तिब्बत में और जो हमारा फुटप्रिंट था तिब्बत में, वो पंचशील के बाद निकाल दिया गया. सो नाउ यू इमेजिन अ हिंदी चीनी थिंग स्टार्टेड, हिंदी चीनी बाय बाय. तो लुक एट माओ एंड हिज प्राइम मिनिस्टर वेरी हैप्पी कि दे हैड दिस सच अ पीस लविंग नेबर. एंड दिस इज आल्सो अ टाइम इन 1953 व्हेन यूएसए to sort out China of unofficially, it's not official, people say that it was given writing, no, USA had offered a UN Security Council seat to Pandit Nehru. Only condition was that India was supposed to join US gang. Pandit Nehru in his wisdom said no, but his reasons were very funny. He said ये करेंगे तो चाइना नाराज हो जाएगा और I cannot offend China because रशिया और चाइना इकट्ठे बैठ के मेरा बैंड बजा देंगे, they are too big.
So this was the thinking, and this is 1953. 54 में नेहरू जी जाते हैं, और जैसे ये पंचशील साइन हुआ और इंडियन ने अपने पोस्टें वहां से निकाल ली, तो चाइना स्टार्टेड डूइंग वन थिंग, एंड दे स्टार्टेड समथिंग कॉल्ड कार्टोग्राफिक एग्रेशन, जिसमें कभी सम पार्ट ऑफ अरुणाचल इज बीइंग शोन इन एज पार्ट ऑफ चाइना और तिब्बत, ईस्ट साइचिन बीइंग शोन. सो 1954 में हमारे नेहरू जी गए चाइना. उन्होंने कहा जी ऐसे करो, ये तो गलत है. तो उनका प्राइम मिनिस्टर जो था चावल, नो 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 नथिंग, ये पुराने मैप्स हैं, पीपल कीप यूजिंग, डोंट वरी. एंड 55 में he comes to India. Nehru ji again raises the same point and he gives the same answer. Ki Nehru ji, why worry? We are friends, we are brothers. Don't worry, these are old maps. I don't endorse these maps. वो क्यों ऐसे कर रहा था कि G219 जो हाईवे है, जो सिंकियांग को लासा से जोड़ता है, उसकी कंस्ट्रक्शन उसमें चल रही थी. And they were buying time. In 1955 when he came to India, they needed one more year to complete the highway. So they wanted to keep India in good humor. और जब वो हाईवे बना और 1957 में जब अनाउंस किया चाइना ने, तो नेहरू जी ने बोला आई एम शॉक्ड. अब 1957 में ही वाज शॉक्ड, बट 1952 में द स्टेटमेंट न्यूज़पेपर में there's a story which came up saying that China is constructing a highway connecting Xinjiang with Lhasa through Aksai. The defense attaché in China had also filed a report earlier to MOD, and next time he filed it to PMO, copy to PMO, whatever was thing called that time, Prime Minister's office that time. And Air Force has later on claimed that their pilots were flying over G19 clicking photographs. One pilot who said, I used to enter from Eastern Ladakh and exit from Tawang almost every week in Canberra. You are a Canberra guy. You know? तो ये सब कुछ था, लेकिन शॉक तब लगा जब अनाउंसमेंट हुई. So basically they were trying to keep things under the carpet, and as a times were communication नहीं थे, जो भी थे, तो ये चलता रहा काम. बट उसके बाद ये this thing came in open, and उस टाइम पे जब 1957 में ये हुआ, उसके बाद चाइना became very aggressive. एक तो उनका हाईवे बन गया था, and now they had to make sure कि highway is given depth in Aksai. So they started intruding into both Nepal and Ladakh. And 1952 में there were two incidents happened. One was in Arunachal, Tawang के north में, यहाँ पे there was a Assam Rifles patrol which went. It was not a post, just a patrol. And आगे से Chinese आ गए. And Chinese said, you are coming into our territory, leave it. So they said, no, it's our, as it happens now, same thing. They started pushing each other. So Chinese, they were more in number as usual, and they pushed Indian patrol back towards Tawang, about 1 kilometer behind, because India was saying this is our area. They said no, 1 kilometer पीछे के. जब उनको उसने छोड़ा तो वो पेट्रोल वापस जाके फिर आगे चली गई, and they went and sat there, जहाँ से उनको धक्का मारना शुरू किया था. So उसमें this time this patrol constructed a bunker and flew a flag saying कि ये हमारी territory. This is all happening at soldiers level, lower level. Some JCO, some young officer. नेहरू जी के उधर नहीं, दिल्ली में कुछ नहीं हो रहा यहाँ पे. सॉरी, इंडियन पेट्रोल ने, हमारी पेट्रोल ने झंडा लगाया सर. हाँ, हमारी पेट्रोल ने झंडा लगाया. So this is the this was the Khenzmane incident. Khenzmane was the place where it happened. After same month, August, this was August 59, I think. Yeah. उसी महीने में एक और इंसिडेंट हुआ. That place was called Longju. I'm losing my wits. No, you must grant me. Longju में क्या हुआ था? Similar kind of confrontation happened, and वहाँ पे फायरिंग हो गई. Chinese opened fire on Indian patrol. So जो फायरिंग हुई ना, वो खबर अखबारों में आ गई. And जब तब तक तो लोग बड़े खुश थे, कोई पता ही नहीं था. General Palit, who wrote a book War in Himalayas, he was in MO directed in 1962. Many people say that the war in Himalaya was basically his cover up his own failures. But one thing he writes that जब ये कार्टोग्राफिक अग्रेशन हो रही थी ना, उस टाइम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में 50% स्टाफ को यही नहीं पता था कि तिब्बत कहाँ है नक्शे में. सो जब उनको बताया जा रहा था कि भाई तिब्बत में चाइना घुस गया,
50 में 1950 में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्टाफ को ही नहीं पता था कि तिब्बत और चाइना की इनर बाउंड्री आउटर बाउंड्री का कॉन्सेप्ट क्या है. So this is how it country was being run. I mean, a lot of water has flown down the river, so we can't really say. 59 में ये दो इंसिडेंट हुए. दलाई लामा जी इधर आ गए. ही केम इन मार्च. अप्रैल में उनको असैलम दिया गया. और दलाई लामा के एग्जिट से पहले क्या हुआ था, खाम रीजन है ईस्टर्न तिब्बत में, where the people are supposed to be probably the most ferocious fighters in Asia. So they are Buddhists. You'll see in old movies also. They are very ferocious, very good swordsmen, very good horsemen. तो उन्होंने पहले रिवोल्ट स्टार्ट किया 1955 में इन खाम. उनको तो चाइना ने काफी रगड़ा, बॉम्बार्डमेंट भी हुई, शेलिंग भी हुई. दे हैड ओनली swords and मैच रॉक्स. फिर लासा में रिवोल्ट हो गया. जब लासा में रिवोल्ट हुआ तो जो वहां पे हमारी एक छोटी सी अभी एक रियर पार्टी वहां बची हुई थी, बाकी सब निकाल लिया था. तो अबाउट 5000 लेडीज ऑफ द टिबेटन लेडीज वेंट टू द इंडियन ऑफिस एंड सेड, हमें बचाओ यार, we are helpless, we don't have arms, save us. But India was, in fact, जब 50 में भी जब इंक्लूड हुआ था चाइना, and that time also Tibet had sent an appeal to Nehru साहब, save us, and India had advised them, exercise restraint and resolve it peacefully. So China has come and captured you, now you resolve it peacefully in 1950. And then nothing happened in 1959. Same. So when Dalai Lama left that place, so what Chinese did, they पूरी जो उनकी बॉडी गार्ड थी, about 110 people who used to guard Dalai Lama, who were left behind, they were disarmed and then machine gunned in Lhasa. मेन मोनेस्ट्री को छोड़ के सब मोनेस्ट्री उड़ा दी थी. बहुत बुरा हाल हुआ था. एंड देन ही कम्स टू इंडिया 1959 अप्रैल. उनको असाइलम मिला. एंड देन चाइना सेड कि अभी बहुत हो गया, इनफ इज इनफ, नाउ आई विल गो मोर अग्रेसिव. तो 1959 के बाद चाइना की अग्रेशन जो थी वो बढ़ना शुरू हो गई. सो जब ये अखबारों में खबर आई कि भाई इंडियन पोस्टों की लड़ाई हो गई, ये दो इन पार्लियामेंट. नाउ अभी आप देखिए स्टेटमैनशिप. तो नेहरू जी पार्लियामेंट में खड़े हुए, अपोजिशन वाले शोर मचा रहे थे. सो व्हेन ही स्टार्टेड स्पीकिंग, ही सेड, आई एडमिट देयर बीन टू इंसिडेंट्स, दैट इज खनजमाने वाला और ये वाला लोंगजू वाला. आई आल्सो एडमिट कि चाइना इज इंट्रूडिंग in Ladakh as well as Nefa. And he said, I also admit that G219 अभी तैयार है और वो हमारे एरिया में से जा रहा है. He admitted everything. And finally he says, hereafter, Nefa is now under Indian Army. So when he makes this announcement in 1959 inside Parliament, General Thmaiya, who was in his office, he was not aware, because Nefa में उससे पहले नॉर्थ ईस्ट में कहीं भी आर्मी नहीं थी. हमारी ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर लखनऊ में था. इट वाज नेहरू स्टेटमेंट वेयर ही सेड, फौज नहीं भेजना है नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट पोल्यूट हो जाएगा, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट बड़ा प्योर कल्चर है, वहां सड़कें नहीं बनानी, फौज भी नहीं भेजनी, बिकॉज ये इनका कल्चर अलग होता है, फौजियों का पीते खाते हैं, तो ये पोल्यूट कर देंगे. लुक एट द काइंड ऑफ अप्रोच. एंड सडनली वन फाइन मॉर्निंग यू गेट अप इन द पार्लियामेंट, बिकॉज न्यूज लीक हो गई और वहां पे शोर मच गया. तो नेहरू जी ने स्टेटमेंट दे दिया. Thmaiya was upset because General Thmaiya that time, as narrated by Shiv Kunal, when he was leaving for lunch, Director of Military Operation General Bhagat Victoria Cross, who should have been our chief but was retired as a Lieutenant General Army Commander, वो उनके ऑफिस में आते हैं, कहते हैं सर मुझे ना डिफेंस सेक्रेटरी ने बुलाया था और कहा है कि ये नेहरू जी ने बोल दिया है अभी नेफा इज अंडर आर्मी. तो he said this is not done here. Firstly we don't have troops. Secondly हमें पूछ तो लेते. So he sent a message to Pandit Nehru's secretariat कि I want to see Pandit Nehru immediately. And General Thmaiya, otherwise very decent, courteous fellow, he went to Teen Murti Bhavan and he actually gave his peace of mind to Pandit Nehru in a very strong manner. And then he told him, sir, you have 2 weeks. You have put me in lurch. In 2 weeks, please do something, resolve this. Either you take your statement back or you give me those many troops, give me those uniforms, equip me so I can send. That Nehruji didn't have. So he left the Pandit Nehru's place after giving him 2 weeks. No, this chief is what? Pandit Nehru had this fear in mind always that army will one day stage a mutiny or revolt in the country like it was happening elsewhere, Pakistan khas karke. So he calls Menon. And Menon ka jo had become Raksha Mantri the day, same month when General Thmaiya took over from General Rajinder Singh ji as chief. Same month,
V.K. Menon was made Raksha Mantri. So he called him and he said, ऐसे हो गया, and I'm afraid कि अगर बार बात निकल गई तो Thimaiya will stage a mutiny and he'll take over the country. And Thimaiya was a very popular general. He was Yeah. respected because he had done very well in World War II. He was the only brigadier to command a fighting brigade. Then 47 he was GOC of Srinagar division. So they sat together and they decided what to do. So Menon told him, you cannot take back the statement given the parliament. You can't say कि अब नेफा में army नहीं जाएगी. This is impossible. You'll be killing yourself politically. So what do? So they worked out a plan. 3 days later, Menon calls General Thimaiya to his office and gives him mouthful. How dare you? How dare you go to Prime Minister straight away when I'm the defense minister? You should have come to me. We could have. So he agitated General Thimaiya so much. The first thing General Thimaiya did was he came out and he resigned. He wrote a resignation letter and he gave it to MOD. He went home. He said, "Go, I'm resigning." And before that, people say he only just spoke to his wife for 2 minutes on telephone, and she also said yes. Mrs. Nina Thimaiya, I think. She said, "Put away papers." So he resigned. Now फौजी को ना उल्लू बना दिया politicians ने. This news of General Thimaiya resigning was leaked out. But when, after resignation, Pandit Nehru called General Thimaiya to his house, sat with him, उनको कन्विंस किया कि नहीं नहीं जनरल साहब सब ठीक कर देंगे, आप ही हो गया लैप्स हो गया, आप रेजिग्नेशन वापस ले लो, हाउ कैन यू रिजाइन अभी जब चाइना से प्रॉब्लम शुरू हो रही है. तो जनरल थमेया द वे सोल्जर्स आर, ही टुक हिज रेजिग्नेशन बैक. After he took back his resignation, news was leaked to media saying General Thimaiya has resigned in protest. After half an hour, Times of India broke a story saying General Thimaiya has resigned in protest. टाइम्स ऑफ इंडिया नाम लिया और गड़बड़ हो गई, कोई बात नहीं, लेट्स जस्ट वेट फॉर अ मिनट. वेरी सैड टर्न ऑफ इवेंट्स. एंड सर बता रहे थे वो एक एयरफोर्स पायलट के बारे में, इनका नाम है विंग कमांडर नाथ, आप चेक करिए, इज अ महावीर चक्र एंड बार. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वो तो उनकी तो स्टोरी है बोलने के लिए कि उन्होंने नेहरू जी को बोला था कि आप हमको टाइम दो, हम इनका पूरा हाईवे शाईवे सब कुछ सेट कर देंगे. सर थैंक यू सो मच. टाइम्स ऑफ इंडिया स्टोरी बोला और सर गड़बड़ हो गई फिर. Okay, so Times of India also broke a story that Mr. Menon also resigned. Now, at the face of it, it looks very good कि जनरल साहब रिजाइन करके फिर आधे पौने घंटे के बाद टाइम्स ऑफ इंडिया वो टिकर चलता था उस जमाने में ना, ऑफिस के बाहर वो लिखते थे चौक के साथ पीटीआई एंड ऑल दिस. तो टाइम्स ऑफ इंडिया टुक दैट स्टोरी बैक सेइंग गलत हो गया. नेक्स्ट डे पंडित नेहरू गोज टू पार्लियामेंट एंड ही मेक्स एन अनाउंसमेंट सेइंग कि जनरल साहब ने एक पर्सनल रीजन पे ईगो प्रॉब्लम में आके रेजिग्नेशन दिया था. एंड अ न्यूज इज लीक्ड आउट टू मीडिया सेइंग कुछ ब्रिगेडियर्स को मेजर जनरल बनना था, वो एमओडी ने कुछ अप्रूव नहीं किया, उस पर जनरल थमिया साहब नाराज थे. चाइना का कोई नहीं आया जिक्र. एंड देन पंडित नेहरू सेज दैट आर्मी मस्ट अंडरस्टैंड, दिस इज पार्लियामेंट स्टेटमेंट, दैट आर्मी इज ऑलवेज अंडर सिविल सुप्रीमेसी. सो एंड थर्ड पॉइंट ही मेड, we don't expect any general to resign at this stage when India is facing problems from China. So उन्होंने ऐसे लपेटा ना जनरल थमिया को कि जनरल थमिया उसके बाद म्यूट मोड पे चले गए. बिकॉज उसी टाइम क्या हुआ, एक नया सितारा उभर के आया, उसका नाम था जनरल कोल, बीजी कोल. बीजी कोल वाज अ इन्फेंट्री ऑफिसर, वर्ल्ड वॉर 2 से पहले कमीशन हुए थे, कश्मीर के थे. 3-4 सर्विस करने के बाद वो आर्मी सर्विस कोर में, एएससी जिसको सप्लाई भी कहते हैं लोग लूजली, बट इस आर्मी सर्विस कोर उसमें चले गए. सो ही वेंट इनटू लॉजिस्टिक्स. ही नेवर फॉट अ वॉर, नेवर कमांडेड अ बटालियन. हिज ओनली क्वालिफिकेशन वाज दैट पंडित नेहरू ने उसको ब्रीफ किया था टू गो एंड अरेस्ट शेख अब्दुल्ला इन 1953, व्हिच ही हैड डन वेरी वेल. सो बिकॉज ऑफ दैट जब वो जीओसी थे 4 डिव के, तो उनके जो कोर कमांडर थे जनरल थ्रॉट, उन्होंने लिख दिया था कि दिस ऑफिसर हैज गॉन बियॉन्ड हिज लेवल ऑफ एफिशिएंसी, कि इसका भाई बस करो. बट whatever people wrote about him, his senior officer reports, they were all set aside every time, and this guy was promoted and he became lieutenant general. और उसको बना दिया QMG, क्वार्टर मास्टर जनरल ऑफ इंडिया. So Menon, Kohl and Pandit Nehru, this त्रिदेव जो बने, they started dictating policies or whatever they wanted to do, and General Thimaiya became a silent watcher. जनरल थमिया को साइड पे जैसे बाल निकालते हैं ना दूध में से या चाय में से, साइड पे कर दिया. एंड ही वाज सेल्फ रिस्पेक्टिंग मैन. अभी लोग कहते हैं कि उस टाइम रिजाइन कर देना चाहिए था, बट वो दैट पॉइंट कि इस टाइम कैसे रिजाइन करो जब चाइना दरवाजे पे खड़ा है, तो प्रॉब्ली दैट इज वन थिंग ही डिडंट रिजाइन. अदरवाइज
he became ineffective. He was just taken out. जो रिकॉर्ड ये कहते हैं कि whatever was being decided, there was somebody called CGS, Chief of General Staff, who was like vice chief. उसकी मीटिंग में जब सारे स्टाफ ऑफिसर्स बैठे होते थे ना, एमओ वाले भी और इन्फेंट्री वाले भी, जितने डिपार्टमेंट उस टाइम थे, अभी तो बहुत सारे हो गए, तो दे यूज्ड टू सिट एंड वेट टिल द अराइवल ऑफ जनरल कोल, हु यूज्ड टू बी जूनियर टू सीजीएस. कोई कॉन्फ्रेंस स्टार्ट नहीं होती थी तो जनरल कोल साहब लेट आते थे जानबूझ के. अंदर आते ही ही सिट एंड बिफोर लिसनिंग टू पीपल हु, जब उन्होंने बोला कि फौज को लेके नेफा चले जाओ, तो पीपल वर सेइंग हमें इतने बूट चाहिए, इतने जैकेट चाहिए, इतनी राइफल चाहिए. ही विल जस्ट रीड आउट, ही सेज all that I can give you is this and this, please manage, and meeting is over, I am going to meet Pandit ji. तो पंडित जी का नाम लेके निकल लेते थे. There's a incident where CGS told people, भाई whatever QMG says, this is the final word, please do. So QMG of India became de facto chief of army staff kind of a person, and he, Menon and Pandit Nehru, thereafter they started doing whatever happened. नो जो हिम्मत सिंह जी की कमेटी थी, उसमें he had recommended that just to show our presence or show ownership of the place, we should have posts थोड़ा आगे, we should not be sitting behind and waiting. अब क्या था ना, लद्दाख में एक बटालियन थी कारू में, only one battalion, and और आईबी वाले मैनेज कर रहे थे. लद्दाख फ्रंटियर वाज बीइंग मैनेज्ड बाय आईबी with one battalion in support. So आपने किसी देश में सुना है कि एक इंटेलिजेंस ब्यूरो बॉर्डर मैनेजमेंट कर रही है? तो 59 में एक वो कोंगाकाला में बहुत जरा कोंगकला, एक ईस्टर्न लद्दाख में एक इंसिडेंट हुआ था. करम सिंह करके सीआरपीएफ का था. ही वेंट विद 2 guys and he was arrested. नेक्स्ट डे जो पेट्रोल उसको देखने गई, they were firing happened and 10 odd guys died. And वो भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. if you read कि when they came back they were all brainwashed by Chinese and they were saying कि Chinese are very good. Chinese opened mortars on CRPF platoon, and India said 20 killed, they said 10 killed, 9 prisoners. It was a bad scene. तो ये जब सब हो रहा था, तो जो हिम्मत सिंह जी कमेटी की जो रिपोर्ट थी, उसमें कहा था कि फॉरवर्ड पोस्टिंग थोड़ा करो, आगे जाके जहां तक अपनी जमीन है उसको एटलीस्ट गो एंड सिट देयर. इफ यू कांट हैव गुड डिफेंसेस, हैव. तो slowly that thing had started getting implemented, but not very aggressively. When China saw Indians creeping towards so-called the जो ट्रेडिशनल बॉर्डर है, तो दे वेंट बैक. ईस्टर्न लद्दाख में दे वेंट बैक फॉर अ व्हाइल, एंड बाद में दे मतलब अपनी पोस्ट लगी, दे वेंट बैक एंड देन दे केम इन बिग नंबर्स एंड स्टार्टेड सराउंडिंग द पोस्ट. तो दिस बिकेम अ डेली अफेयर. आपकी एक पोस्ट है, उसको 200 चाइनीज ने घेर लिया. ना फायरिंग आप कर रहे हो, ना फायरिंग वो कर रहे हैं. फायरिंग नहीं होती थी, बट वी आर सिटिंग सराउंडेड 10-20 ऑफ यू गाइज, नो कम्युनिकेशन विद आउटसाइड वर्ल्ड, नथिंग टू सपोर्ट यू, एंड 200 बंदों ने घेर रखा है. So this drama kept on happening, and this is how it was, border was being managed. And then this is 59. 59 December में army was told कि IB से charge ले लो or you become effective in Ladakh. So 1959 Indian Army became effective in Ladakh. 1959 4th Division from Ambala, a formation which was trained to fight in plains, was sent to Nefa to fight in high altitude without extreme clothing, extreme climate clothing, without that weaponry which was meant for that area. And they were said कि आप जाओ. 3 ब्रिगेड, 570 किलोमीटर का फ्रंटियर, एक ब्रिगेड लोहित वैली में डाल दी. आज आप लोहित जाके देखना हाउ बिग दैट वैली इज. एक इधर तमांग में डाल दी, ये बेसिकली तवांग एंड कामेंग फ्रंटियर. एंड वन वाज सेंट टू सिक्किम बिकॉज सिक्किम वाज अगेन, उस टाइम सिक्किम का भी इशू था, सिक्किम वाज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया. सो बोला अब यू नाउ डिफेंड. जो जीओसी इन सी थे, आर्मी कमांडर थे जनरल थोराट, हु वाज सपोज्ड टू बी नेक्स्ट चीफ आफ्टर जनरल थमैया, बट ही वाज सेंट होम. लाइक गुड ऑफिसर्स आर सेंट होम अर्ली, एंड जनरल प्राण थापर वाज मेड चीफ लेटर ऑन. सो जनरल थोराट ने एक एक्सरसाइज की लाल किला in his war game in Lucknow. He called all senior commanders of Eastern Command and said, if Chinese were to attack, because BN Malik kept on saying in every meeting कि China attack करेगा. Menon kept on saying वो attack नहीं करेगा तो हम संभाल लेंगे diplomatically. So General Thorat, being a soldier, he had exercise called Lal Killa, and there he created a plan कि okay, अगर China attack करता है, because the superior in numbers, we don't have force levels, we don't have capability,
तो हम क्या करेंगे कि छोटे छोटे कमांडो प्लाटून लगा के आगे वाला जो माउंटेन वाला इलाका है नेफा का, वहां पे हमारी छोटी छोटी पार्टीज उनको उनपे गुरेला अटैक करेंगी। जब चाइनीज आ रहे हैं, somebody will go hit them from left, somebody right, from somebody, और जब चाइनीज प्लेन्स में आ जाएंगे, असम के प्लेन्स में, जब उनकी दुम बड़ी लंबी हो जाएगी, जब they'll be away from their logistic chain, उस टाइम वी विल फाइट them in planes, because 4D was actually designed to fight in planes। ना तो सामान था, ना ट्रेनिंग थी। Now government of India की पॉलिसी डिफरेंट थी, they said no, we will fight China at the watershed itself, इधर नहीं आने देना एक कदम। तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो होता रहा, जनरल थोराट वाले प्लान में थोड़ा जो एक और कॉन्सेप्ट आया है कि we'll fight in 3 tiers। फर्स्ट tier will be commandos, early warning elements, they will only disrupt and fall back, और जो नेक्स्ट लाइन है उस पर हम डिफेंड करेंगे। ये जो लाइन थी बमडीला सेला वाली, अगर आप मैप देखेंगे तो जनरल थोराट का जो प्लान था उसमें थोड़ा एरर है, बिकॉज जनरल थोराट वाज सिटिंग इन लखनऊ एंड डूइंग इट ऑन क्वार्टर इंच मैप, और वो जो पहाड़ी ये कहाँ से निकल रही है वो दैट ही कुंट लेटर ऑन व्हेन ही वेंट ऑन ग्राउंड एंड ही रियलाइज की मिस्टेक है। तो बेसिक मूड पॉइंट ये था कि आर्मी वांटेड टू फाइट चाइनीज सक्सेसिवली at a place of own choosing, and where Indian Army would have been strong, given the weaknesses, limitations, whatever strength we had. Government said no, आप you take them face on, बिल्कुल आगे। इनफैक्ट अगर आप जब जनरल कोल की डिप्लॉयमेंट पढ़ोगे, जो नेक्स्ट व्हेन वी डिस्कस ऑपरेशंस पर से, ही डिप्लॉयड 2 battalions इन द रिवर बेड। पीछे पहाड़ है, आगे सामने पहाड़ है, सामने पहाड़ पे चाइनीज बैठे हुए हैं। तो लॉजिक ये कहता है ना कि वो पहाड़ पे बैठे हैं, आप भी पहाड़ पे बैठ जाओ, बीच वाला इलाका छोड़ दो, कीप सम पीपल देयर, को माइंड लगा दो। इसे नो, बिल्कुल दरिया पे बैठो नीचे। नाउ यू लुक एट, कैन यू फाइट अ एनिमी व्हिच इज हु सिटिंग ऑन टॉप एंड यू सिटिंग बिलो, डाउन बिलो इन द रिवर बेड, एंड देन दे रोल डाउन एंड दे, दैट फेज विल डिस्कस लेटर। सो उस टाइम एक इंसिडेंट हुआ which is taken as a trigger for 1962 war। It is called Dola incident। Now Dola is a place where Bhutan, India and Tibet meet, is tri junction, and the ridge, name of the ridge is Thagla ridge। थागला रिज पे एक जगह थी नहीं, इसका नाम बना इंडिया ने दिया था बाद में। तो एक पेट्रोल को बोला गया, ऑर्डर ये आया कि जितने फॉरवर्ड आ सकते हो। अभी जो सटल फॉरवर्ड पोस्टरिंग था, उसमें एक एग्रेशन आ गया सडनली। मेनन साहब गेव एन ऑर्डर कि आपको पुलिस वाला मिलता है पुलिस वाला उठा लो, आर्मी वाला मिलता है आर्मी वाला उठा लो, कोई नहीं मिलता सिविल डिफेंस उठा लो, लेकिन पूरे का पूरा जो नेफा है उसको मैन करो। एंड फॉर दैट ही सेड कि जहां जहां तक हमारी एज वी परसीव इज द बॉर्डर, वहां पे पोस्ट होनी चाहिए, उसके पीछे नहीं आ सकते। सो दिस एक एक्सट्रीम कॉर्नर में भूटान और लाइक आई सेड दोला, थगला रिज, उसमें जो लोकेशन थी उसको दोला, उसका क्लैरिटी नहीं थी, बिकॉज यू नो क्वार्टर इंच मैप में तो वैसे अगर आप पेंसिल थोड़ी सी मोटी करोगे तो 2-4 किलोमीटर वैसे निकल जाते हैं। तो जनरल पलित वाज इन एमो डायरेक्टरेट। तो जब ये ऑर्डर दिया गया जनरल ब्रिगेडियर दालवी को, जेपी दालवी हु रोट दैट बुक हिमालयन ब्लंडर, कि यू सेंड ए पेट्रोल देयर टू द ईस्टर्न मोस्ट एज इन नेफा। So he in his perception that ridge where patrol was being sent didn't belong to India. Even as per McMahon line, it was supposed to be part of Tibet. So he asked the DVET quarters, but DVET quarter में थे जनरल निरंजन प्रसाद। He also said यार ऐसे लगता है कि ये हमारा नहीं है। So they asked the command headquarter में बैठे थे जनरल LP Sen। General LP Sen had done very well in 47, but this was the moment of testing where he actually failed as army commander, more so because Cole had brushed aside everybody, and General Cole was the virtual chief of Indian Army, so to say. So General Sen भाई चुपचाप दुकान बंद करके बैठे हुए थे। So they asked MO Directorate. So MO Directorate also felt where General Palit was sitting that time कि हाँ ये गलत है। He was brigadier that time कि ये जो जगह है ये हमारी नहीं है, ये तिब्बत की है। But who's going to bell the cat? तो उन्होंने वो नक्शा उठा के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को भेज दिया, जो नेहरू साहब के अंडर थी। MEA को कुछ समझ नहीं आया, नक्शा देखा, बोला ऐसा करो कि ये है या नहीं है, you go and occupy it. And that Dola thing, Captain Mahavir was sent, Captain Mahavir Singh, who happened to be General Niranjan Prasad GOC's nephew, he was sent with a patrol. वो वहां गए and they saw that Thagla ridge खाली है, वहां कोई चाइनीज कोई नहीं बैठा हुआ, हालांकि that ridge part of it was in Tibet. तो उसने दोला करके पोस्ट का नाम दिया, खुद ही दिया। दोला was not a name earlier. He created a post there called Dola Post. And उस दोला पोस्ट पे जो प्रोटेस्ट हुआ, चाइनीज रिएक्टेड
and within days the whole Thagla ridge was occupied by Chinese, and then they sent a warning to India: you guys are coming to our area, go back. Now that Dola occupation of Dola post is considered as trigger for 1962 war, uh, which we'll discuss. I mean, we'll talk about it later. So prelude to 1962. This is how we managed our relationship. This is how we managed our border. एंड जब वो आए चाइनीज, तो जो हमारी जो थोड़ी बहुत फौज थी वो 7 ब्रिगेड वो दरिया में नीचे रिवर बेड में डिप्लॉयड थी. और एक इंसिडेंट हुआ था जब जनरल कोल हैड कम टू द ब्रिगेड, देयर वाज अ 2 राजपूत बटालियन जो पूरी की पूरी मारी गई थी. देयर वर 282 पीपल डाइड इन दैट फर्स्ट अटैक. देयर वाज अ जेसीओ ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 47 1947 का वेटरन. ही गॉट अप एंड ही सेड कोर कमांडर को, जनरल जनरल कोल वाज मेड कोर कमांडर लेट. ही सेड सर हमने भी लड़ाइयां लड़ी हैं पर कभी हमने नीचे बैठ के ऊपर दुश्मन को डिफेंड नहीं कर पाते. नॉर्मल फौजी सिखलाई है कि यू शुड बी सिटिंग इन ए डोमिनेटिंग प्लेस सो दैट अटैकर कम्स फ्रॉम बिलो. इन दिस केस यू आर सिटिंग इन द रिवर बेड एंड ही इज सिटिंग ऑन टॉप, so he'll just roll down. So General Colt said कि इसका कोर्ट मार्शल करो. How dare he speak to court martial like this? But then people said sir ठीक है छोड़ो. That JCO later on got 24 bullets when the action happened. I told you 280 odd people of two Rajput was written off. So now look at this guy. This guy is a Rajput from Rajasthan. उसको 24-25 गोलियां लग गई, तो he is half dead, left dead. The Chinese आए, they had brought their medical staff along and they were just checking. So many people killed, 282 people of one battalion. Then 9 पंजाब का वो मैं बाद में सुनाऊंगा कहानी. तो जब नब्ज देखी तो उसकी हल्की हल्की नब्ज चल रही थी जब उसको पकड़ा ना. And the nurse who was checking people, उसने तो पानी वानी उसके मुंह पे डाला होगा, बोला कहाँ के हो, just to check if he's in senses. Now this guy who's from Rajasthan, he says मैं इलाहाबाद का हूँ. और see कई चीजें ना, they have no explanation. He had no connection with Allahabad, but he said I'm from Allahabad. And you know what happened because of that? That nurse had actually got trained as a nurse in Allahabad. जब हिंदी चीनी भाई भाई का रोमांस चल रहा था तो चाइनीज इंडिया में आते थे ट्रेनिंग करने. तो इलाहाबाद का नाम सुन के इलाहाबाद और प्रयागराज, she became kind to this JCO और इसको बचा लिया उसने. इनफैक्ट जब अगले साल जब prisoner was exchanged, she came along and she said इनको ये दवाई देनी है and he survived. So कहने का मतलब ये है कि टॉप लीडरशिप तो टोटली नेशनल लीडरशिप फेल्ड. आर्मी सीनियर लीडरशिप फेल्ड इन द सेंस कि अगर आपने जनरल कोल के हवाले कर दी पूरी फौज, उसको कोर कमांडर, वहां जनरल उमराव भी थे. एक 33 कोर थी पहले, 4 कोर बाद में रेज हुई. ही हैड प्रोटेस्टेड. जब ऑर्डर आए तो कोल साहब फ्लू डाउन टू मीट हिम एंड बोला जनरल उमराव को नहीं नहीं नहीं. जनरल उमराव वाज अगेन 47-48 का वॉर हीरो. तो उसको फिर लग कर दिया, 33 कोर लग कर दी, ये 4 कोर बन गई. So a person who's not fought a war, he's not commanded a company, not even a battalion, not a brigade तो कमांड की, उसको आपने कोर कमांडर बना दिया. So military leadership top level पे failed, political leadership you know now that we spoken about it. अब जो बचे जवान, लोग कहते हैं जी 1962 was a humiliating defeat. If you look at the individual actions of, as we go we'll discuss few, people gave them all, gave it all. जिससे जो पड़ा, वर्दी थी, पीटी शूज पहने हुए हैं, they fought like hell, got killed, murdered, slaughtered without any help, no RT. एयर फोर्स को मना कर दिया नेहरू जी ने. एयर फोर्स यूज की होती तो चाइनीज would have been sorted out because their air force was not operating in Tibet. आज भी उनको प्रॉब्लम है इतने सालों के बाद. तब यू कैन इमेजिन 60 साल के बाद भी प्रॉब्लम है तो तब क्या हाल था. So this is how this was a prelude to 1962. And now if you have this kind of a prelude, do you really think you will win a war where your political leadership has been manipulated by Chinese, and that leadership then overruled military sense, and ना नीचे वाले की सुनी ना ऊपर वाले की सुनी, और हो गया. उसके बाद नेहरू जी को शॉक हुआ, बाद में उनका दिल टूट गया, वो सब कुछ हुआ. But this is how it started. स्टार्ट के बाद की और we can, अभी 1 घंटा ऑलरेडी हो चुका है, तो that we can discuss later in a better network coverage. इस पे तो So I think I will finish here. इस पे तो पूरा ऑपरेशन करेंगे सर, एक एक बैटल का वो तो करना ही पड़ेगा हमको, एंड दैट इज समथिंग दैट वी विल डू. तो बट Yeah, I can barely hear you. Yeah, we'll do Nepal separately and Eastern Ladakh separately because these were 2 different frontiers which opened up in 62. That we'll do.
Done, sir. थोड़े से questions हैं sir. Let's just take some questions. हाँ जी, now I can hear you. हाँ जी, तो एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं सर. One is 2 3-inch motors, 3 2-inch motor, no MMG, no LMG, no proper equipment, still 120 Bravehearts fought till the last man. Hail to the Bravehearts of Rizangla. Rizangla. We'll cover this. We'll cover हाँ battles. जी. We'll cover later. एक है, इन्होंने बोला ऐसा, क्वीन विक्टोरिया द ओपियम स्मगलर. You know, चाइनीज चाय सिर्फ चाइना में पैदा होती थी. हाँ जी. ब्रिटिश ने अपना एक बंदा भेजा, उसने टी वर्कर बन के काम किया 2-3 साल और वहां से चोरी करके लाया. ये जो हमारे दार्जिलिंग और यहाँ जो असम में चाय क्यों उगती है, नियरेस्ट ब्रिटिश लैंड वाज इंडिया. तो पहले चोरी की, उसके बाद ओपियम इतना सप्लाई किया चाइना में कि वहां पे हर दूसरा बंदा एडिक्ट हो गया. और लाइक आई थिंक वी ऑफलाइन वी डिस्कसिंग अदर डे, ओपियम का रेट और चांदी का रेट बराबर हो गया. 1 ग्राम ओपियम लेना तो 1 ग्राम चांदी दे दो. चाइना को तो इतनी बुरी गत कर दी ना इन्होंने, ब्रिटिश ने. तो यस, दिस इज ऑल अंडर द क्राउन, वेदर किंग और क्वीन. नहीं वो तो है सर, एंड वो तो उसके So बारे में तो that आज historical part is again very very interesting. वो हिस्टोरिकल पार्ट है ना, कभी टाइम मिलेगा वो भी कर लेंगे किसी ने. ओपियम 1, ओपियम 2, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी हार्ट ब्रेकिंग एक्चुअली. वो तो खुद बोलते हैं सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन, क्योंकि आई एम नॉट टेकिंग बीइंग द साइड ऑफ चाइनीज, बट या उनकी हिस्ट्री भी काफी खराब रही है. या देयर इज नो क्वेश्चन. मंदर साहब सेज इंडिया वाज द नेचुरल इनहेरिटर ऑफ ट्रीटी बट नॉट कॉमन सेंस. आई थिंक बड़ा जबरदस्त कमेंट है सर दिस. ओके लेट्स जस्ट आपका वहां पर लाइट लाइट गई, चल यू गया. नो आई एम ऑनलाइन. No worries, You sir. can see a bit Given of me, I'll just that, get to it. Yeah. given that China holds the upper riparian regions and keeps building dams, will it cause troubles, water troubles like scarcity of water in the future? Yeah, China is into water wars. I mean, it's already done with so many countries. In fact, the dam which is making on Brahmaputra is actually, I believe, the speed of rotation of Earth has slowed down by, I think, half a second or something. Yes, we expect, but Brahmaputra is, उसका जो catchment area है ना, वो सारा चाइना में नहीं है, तिब्बत में नहीं है. So even if it blocks Brahmaputra, firstly Brahmaputra can't be blocked. It's too huge a river. Too big. करेगा भी तो हमारा जो अपना जो कैचमेंट एरिया जो सिक्किम से हमारा आता है और जो असम से और ये जो जैसे दूसरे रिवर्स हैं, जो कैचमेंट है सियांग रिवर का, बल्क ऑफ इट इज विद इन इंडिया. सो प्रॉब्लम्स होंगी बट नॉट द वे दे हैव डन इट विद अदर कंट्रीज इन द नेबरहुड. वैसे नहीं होगा जी. अभी तो चाइना में पानी सूख गया इस बार तो. Both Nehru and the Brits stopped Tibetan voices which sought help from the UN and tried to take up the issue of Chinese aggression to the UN. नेहरू सेड वेरी क्लियरली नो कि हम चाइना को नाराज नहीं कर सकते, बहुत बड़ा है एंड वो नाराज हो जाएगा, सोवियत उसके साथ है और हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा सर्वाइवल. दैट वाज वन. एंड सेकंड, नेहरू वाज प्रीचर ऑफ पीस. सो ना तो वो तिब्बतन की हेल्प कर सके, ना वो चाइनीज के आगे लड़ सके. सी व्हेन यू फाइंड वेज एंड मीन्स टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, इवन व्हेन कॉन्फ्लिक्ट इज स्टेयरिंग इनटू योर आईज, तो आप ना फिर हारते हो एंड में. आप अपनी खुद ही चाहे यू डाई विद अ ब्रोकन हार्ट, दैट्स ऑल योर फॉल्ट. आप सच्चाई तो मिस्टर पटेल रोड टू नेहरू साहब इन 1950 कि पंगा होने वाला. मलिक ने बोला 50 में अटैक होगा. उसके बाद एक जनरल कुलवंत सिंह थे जो जीओसी थे 47 में जम्मू डिवीजन के. In his study, he had written in 19. That study was in 1951. He said in 10 years' time, China will attack India. और वो छोड़ो, 1959 में आपने ट्रूप्स मूव कर दिए नेफा में, लद्दाख में. तो उसके बाद 2 साल, 36 months later, war started. So if you look at that period of mobilization, no new units raised, no equipment given, nothing. 2 साल कम, 36 महीने कम होते हैं. I mean, we can keep saying कि ठीक है जी 1950 में हिंदू चीनी भाई भाई था, वो सब कुछ था. भैया जब आप 1959 में आपने ट्रूप्स मूव कर दिए और बोला कि फॉरवर्ड पोस्टर ले लो, अब अग्रेसिव हो जाओ, तो उनको सामान तो दे दो ना. 1959 इनिशियली, 60, 61, 62 एंड में जाके लड़ाई लगी है 2 बार. आई मीन 2 पार्ट्स में. तो 36 months वी डिड नथिंग. उसके बाद वी कैन, जब आप अपनी आर्मी को सपोर्ट नहीं करोगे तो आप तिब्बत को कहाँ यूएन में जाके क्या करोगे? एंड हु विल लिसन टू यू इन एनी केस?
It's sad state of affairs, sir. That's exactly what Abhinash is saying, sir. We had troops in Gartuk, Singase, Yatung, and after Panchil Treaty, Nehru ordered the withdrawal of these troops. ये तो आपने बताया सर इसके बारे में. Yeah, You and yeah, as a matter of fact, एक बड़ा interesting था मंदन का comment कि good stories always have interruptions. So काफी आज हमारा and I said it. मैंने थोड़ा जल्दी बोल दिया. I think good stories have interruptions. मंदर साहब ये I hope हमारा ये this doesn't come true. Although let me just say this. The story that sir has told us is something which a lot of us would have had to go through 5 or 7 जगह जाके हमको देखनी पड़ेगी ये story. It is not something that will be easily found. So just sir ने story बताई है sorry, इसके बारे I went में. missing. अरे नहीं सर, मैं वही बोल रहा था जो आपने story बताई है आज सर. अगर किसी को इस चीज को एक जगह पे देखना पड़े, बड़ी मुश्किल चीज है. It's not something that you can find very easily. 5, 10, 15 जगह जाके रिसर्च करके कुछ मिल सकता है where you can get this kind of stuff. Sir, next comment लेते हैं. Yeah. Who gave the theory that if we build highways in the northeast and Ladakh, then China would use them to invade us? ये सुनी सुनाई बातें हैं, इसका डॉक्यूमेंट्री कुछ एविडेंस नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि नेहरू जी ने ये कहा था कि नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट नहीं करनी और आर्मी नहीं भेजनी, वो पोल्यूट कर देंगे कल्चर को. और लद्दाख में ये इवन वी हर्ड अबाउट इट, आई रेड इट आल्सो, बट आई मीन देयर इज नो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, एटलीस्ट नॉट टू माय नॉलेज. पर हो सकता है बोल दिया हो. जब आपने बहाने ढूंढने हैं ना कुछ नहीं करने के, तो यू विल फाइंड ऑल काइंड्स ऑफ वेज एंड मीन्स. तो आप देख लो, इसमें यही तो हुआ है. 12 साल हमने यही किया, 50 से लेके 62 तक बहाने ढूंढे. नेहरूज गोस्ट आदि प्लीज डू सम हवन पूजा. आपका बार बार नेटवर्क खत्म हो रहा था, लोग बोल रहे थे एक बारी पूजा कर लेना यार अगली बारी. No, lesson learned is I will have sessions only when I'm at my base, because Srinagar city, I'm sitting in this heart of city. There's a Wi-Fi here in the hotel, but I don't know what's happened then. कोई ना रूम में सर. 4 बार शिफ्ट किया तो एटलीस्ट मैं सिम में बहुत हूँ. Thank you so much for the effort, sir. That's all I would say. Jain sir, today Yeah. Indians know the blunder of Chacha Nehru. India had air force that at that time. Why did India not use its air force in 1962? 1962 में एयरफोर्स की 2 बातें हुई थी. एयरफोर्स यूज हुई थी, नॉट इन एयरफोर्स को यूज करने के तरीके ना, ट्रांसपोर्टेशन मोड है, ऑफेंसिव एयर ऑपरेशंस नहीं किए गए. नेहरू जी डिडंट वांट टू एस्केलेट. एट द सेम टाइम नेहरू जी had in writing requested US Army to send their air force to fight for us. ये तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है. तो पहले अपनी एयरफोर्स को बोला आप मत लड़िए. जो एयरफोर्स ने फोटो खींच के लाया GU-21 को बोला ये सब ऐसे ही है, दिस इज इमेजिनरी, ये सब झूठ है. और जब सिर पे पड़ गई तो यूएसए को बोला गया प्लीज सेंड योर एयरफोर्स टू बम्बार्ड चाइनीज. एंड देन यूएसए सेड नो, वी विल नॉट डू दिस एंड नोबडी विल डू इट. व्हाई शुड पीपल डू इट फॉर यू? आज भी देख लो यूक्रेन में क्या हो रहा है. ठीक है, हथियार देना अलग चीज है, अपने जहाज भेजना अपने डिफरेंट इम्प्लीकेशंस. तो चाइना को नाराज नहीं करना था और हम ऑफेंसिव नहीं दिखना चाहते थे. तो दे ऑलवेज थॉट, सी एक आपको ये समझना चाहिए व्हाई जनरल थिमैया वाज अपसेट. इट्स नॉट दैट आर्मी कम थी, वो तो था ही था. आर्मी नहीं थी, इक्विपमेंट नहीं था, ट्रेन नहीं थे, मैप्स नहीं थे, वो सब था. एक और इम्प्लीकेशन ये थी कि जब तक इट वाज हैपनिंग बिटवीन असम राइफल्स व्हिच वाज अ पैरामिलिट्री फोर्स और हैपनिंग विद बॉर्डर पोस्ट ऑफ, दे आल्सो यूज्ड टू डिक्लेयर देयर सोल्जर्स एज बॉर्डर सेंट्रीज. तो तब तक ये लोकलाइज्ड अफेयर होता था. जब आर्मी से आर्मी सामने टकराती है तो फिर वो वॉर हो जाती है. एंड दिस इज व्हाट जनरल थिमैया हैड राइटफुली एंटिसिपेटेड कि अगर आप उनको मैनेज नहीं कर पाते तो कीप इट लाइक दिस ओनली. असम राइफल को यूज करो, लोकल पुलिस को यूज करो, लोकल बॉडीज को यूज करो, फौज को वहां मत बिठाओ, बिकॉज फौज ओनली नोज वन थिंग, दैट इज टू फाइट. Whereas a paramilitary force or a police force will always try to negotiate. I mean, that's also a good way of doing it. But फौज में ये चीजें negotiate तो होती नहीं. जब आमने सामने आ गया तो फिर लड़ाई शुरू हो जाती है. This is what happened in Longchu. Firing होगी. तो this is what was. If you're not prepared, don't send army ahead, which was very sensible thing to do. But sensible फिर वो बाद में तो sensible बाद में समझ आती है ना, उस टाइम नेहरू जी को नहीं पसंद आया. ये था. और मैनन had its own
He was basically communist. Manner was basically communist. Nehruji was socialist. तो ये सारे basically China lovers थे in more than one way. ना तभी तो आप देखिए ना 1959 तक, जब तक वो गोली ना चली लोंगजू में, आपने छुपा के रखी, खबर ही नहीं सुनाई देश में कि चाइना अंदर घुस रहा है। हमारे 150 पुलिस वाले, लोकल एडमिनिस्ट्रेटर और 23 जवान आरडी सिंह, मेजर आरडी सिंह को मार दिया गया है सियांग वैली में। नोबडी, इट वाज नॉट लीक्ड आउट, इट नेवर केम इन पेपर्स। So this is how it was. So next question, why Nehru adopted an anti-India sort of or anti-Tibet policy? Why such policy is taken against our own interests, and what was? I won't go for this because this is a very political question. But sir, basically what he's asking for is जो policies हमने apply करी सर, हमको समझ में नहीं आया कि क्या हुआ. I mean, I'm sure किसी ने तो बोला होगा भाई क्या कर रहे हो यार, ये तो पंगे हो जाएंगे. जैसे you mentioned बोला ना मलिक ने बोला, पटेल साहब ने बोला, बीएन मलिक ने बोला। और जब सिंकियांग उन्होंने 1949 में ले लिया था, जैसे ही सिविल वॉर खत्म हुई चाइना में, फर्स्ट थिंग दे डिड वाज दे टुक सिंकियांग, एंड दैट वाज अ alarm kind of a thing. And there's evidence to say that Pandit Nehru was alarmed when Xinjiang was invaded and captured by China. तो जब आप अलार्म हो गए, उसके बाद आपने किया क्या? उसके बाद आपने क्या किया? आपने अपना वाला फौज तो मुझे चाहिए नहीं। तो जब आपको फौज नहीं चाहिए, आपने ना तैयारी करी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो बाद में बनी, ट्रेड यूनियन वाली बात की अलग कहानी है, तो आपने क्या किया? आपने दूसरा रास्ता चुना कि मैं दोस्ती करूंगा। अब सांप से दोस्ती थोड़ी होती है यार, दोस्ती होती है बराबर वालों के साथ। सांप भी दो सांप बराबर होंगे तो शायद दोस्ती कर लेंगे, नहीं तो कभी कोबरा वाइपर को खा जाता है, कभी वाइपर कोबरे को खा जाता है। आपने कन्फेडरेशन को छोड़ने के लिए आपने एक सुसाइडल मिशन चुना कि हम दोस्ती करेंगे, और वो कहते गए और आप सुनते गए। आपने पंचशील कर लिया, पोस्टें हटा ली, अपने लोगों की बातें नहीं सुनी, आर्मी चीफ की बात तो छोड़ो, इंटेलिजेंस वाले की बात नहीं सुनी। जब उसने शोर मचाया, उसको कैबिनेट कमेटी से बाहर निकाल दिया कि छोड़ो, मलिक शोर करता है। तो दिस इज हाउ इट वाज। So answer to this question is only कि when you decided not to fight, so you decided to be friendly. उसमें जितना भी नुकसान हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, we were friends, और नुकसान हो गया। बट सर एक चीज फिर भी नहीं समझ में आती कि भाई अभी ये जो एग्जैक्टली लाइक मेरा यही सवाल है मंदर, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस, इज दैट जो हमने लेसन सीखा 1962 से, हमने कुछ तो सीखा होगा ना, उसके अंदर जो चेंजेस 65 तक आने चाहिए थे, थोड़े बहुत तो आए सर, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेजरली स्पीकिंग उस टाइम पे भी चीजें हो रही थी, एंड उसकी जो हिस्ट्री है आज तक बाहर नहीं आती कि भाई 62 की हिस्ट्री क्यों नहीं निकालते सर. लेट मी जस्ट से दिस, जो हमारे को लेसन सीखने चाहिए. आई मीन पाकिस्तान आज जिस हालत में है बिकॉज उनको दिमाग में है कि भाई हम तो सारी जंगें जीते हैं, सो देव गॉट दैट ओवर कॉन्फिडेंस, एंड जब वो बात करते हैं मिलिट्री अफेयर्स के बारे में, उनका टोटली डिफरेंट माइंडसेट है. हम लोगों को पता है हमने गलतियां करी, बट द रियल स्टोरी जो है सर ऑफ दिस थिंग, जैसे जो आपने आज बताया, एंड मैटर ऑफ फैक्ट किसी ने कमेंट लिखा है कि आई एम डीपली शॉक्ड टू हियर दिस. See, there are 3 studies carried out, 2 before the war and 1 after the war. First was that Himmat Singh Ji report, which was done for Ladakh separately and Nefa separately. It is yet to be declassified. This is a pre-war. तो यू आर राइट, अगर आज वहां कोर कमांडर जाते हैं तो शुड ही रीड दैट रिपोर्ट, वो क्लासिफाइड है। दूसरी जनरल कुलवंत सिंह की रिपोर्ट 1961 की 1951 की वेरी सर कि 10 साल के अंदर चाइना विल अटैक, दैट इज आल्सो क्लासिफाइड। एंड जब वॉर हो गई, हेंडरसन ब्रोक रिपोर्ट जो लिखी गई, जिसमें जनरल प्रेम भगत ब्रिगेडियर, जब उनको मैंडेट दिया गया तो पहले बड़े जो उसके ना वॉर के बाद फिर कैजुअलिटीज हुई, आर्मी चीफ गया, फिर कोल साहब चले गए, फिर मेनन साहब चले गए, काफी कुछ हुआ, सफाई ऑटोमेटिक। नेहरू साहब ने कुछ नहीं किया, लोग खुद ही चले गए शर्म के मारे। तो बोला गया कि पता करो क्या हुआ, लाइक यू सिंह ने पता करो। तो जैसे वो पता करना स्टार्ट हुआ, दूसरा ऑर्डर आया कि पॉलिटिकल साइड छोड़ दो, ओनली फोकस ऑन मिलिट्री इश्यूज। मिलिट्री में ना नेवी लड़ी थी, ना आपने एयरफोर्स लड़ने दी, एयरफोर्स ने तो ट्रांसपोर्टेशन की थी, तो बची कौन? फौज। चलो अच्छे लेसन आने चाहिए थे, दैट रिपोर्ट इज स्टिल क्लासिफाइड।
Somebody is तो written ये here also तीनों saying रिपोर्ट्स classified है. क्लासिफाइड है। जो हेंडरसन का एक पार्ट 1 करके डी लोग नेट पे घूम रहा है, विच इज हार्डली एनीथिंग फर्स्टली, एंड सेकंडली जी. वन कांट रियली बी श्योर अबाउट इट. तो यस, वी शुड हैव लर्न द लेसन, दैट शुड हैव बीन पार्ट ऑफ आवर आर्मी करिकुलम. नो, आपको पता है, अभी तक 2 साल पहले तक हम जब हमारे प्रमोशन एग्जाम्स होते थे, पार्ट बी, पार्ट डी एंड स्टाफ कोर्स, स्टाफ कोर्स मिलिट्री हिस्ट्री बाद में आई. वी यूज्ड टू स्टडी इटालियन कैंपेन्स, अफ्रीकन कैंपेन्स, कोरियन वॉर, वियतनाम. मैंने पार्ट बी में वियतनाम पास करके पढ़ा था. पार्ट डी शायद मेरे टाइम पे कोरियन वॉर थी. तो नोबडी टॉट अस 47, 48, 71, 62, 47, 48 में, जहाँ पे हमारा कसूर नहीं था, उसकी ऑफिशियल हिस्ट्री लिखी गई 1950 में. आई नो व्हेन इट इज पब्लिश्ड 1981. द ऑप्स इन जम्मू एंड कश्मीर, द ऑफिशियल बुक was published in 1981, 33 years after the war. और जो 71 की जहां हम जीत के आए, उसकी एक एमओडी की रिपोर्ट है, ऑफिशियल हिस्ट्री, वो आगे पब्लिश होगी. 62 का कुछ खबर नहीं है. 65 की भी आधी दुबी है. आई मीन यू कैन कॉल इट ऑफिशियल हिस्ट्री. यस, आप हिस्ट्री से नहीं सीखोगे तो फिर मार खाओगे. अपने खा रहे हैं. आप कह रहे हो ना 62 के बाद क्या हुआ. 62 के बाद माउंट बैटन जी आए इंडिया में. Now we are हाँ. slightly deviating from the topic. And he told पंडित नेहरू कि अपनी इज्जत बचानी है तो अभी एक ही तरीका है, कश्मीर सॉल्व कर दो. एंड पंडित दे नेहरू दो सर कि वो उनको. कैसे सॉल्व करें. बोला दे दो यार, पाकिस्तान को थोड़ा सा दे दो पोर्शन. दैट स्टोरी आई थिंक वी डिस्कस्ड वंस. सो ये था. आप 62 की मार खाने के बाद भी यू आर नाउ लुकिंग. चाइना से पिट गए, अभी वी वांटेड टू डू फ्रेंडशिप विद पाकिस्तान बाय गिविंग पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे कश्मीर टू पाकिस्तान. थोड़ा सा नीलम गंगा वैली वगैरह दे दो, शमशाबारी रेंज के उससे सब पकड़ा दो, एंड बी ए गुड स्टेट्समैन. नोबेल प्राइज वो मिला नहीं तो भारत रत्न ले लिया खुद ही. सी आई एम नॉट, आई मीन later when we keep cursing him, Nehru probably had his own compulsion, whether he was under pressure or he didn't have the ability to, I don't know what was the thing in his mind. बट ये कहना कि हमें फौज चाहिए ही नहीं, हमारी पुलिस ही काफी है, और ब्रिटिश आर्मी चीफ जो आपको एक डिफेंस पॉलिसी दिखा रहा है उसको उठा के आप कूड़े में फेंक रहे हो, बोलो ये तो हमें तो चाहिए नहीं. दैट शोड देयर वाज समथिंग रॉन्ग विद हिम when it came to military, and that continues even today, by the way. That is part of our democratic DNA. DNA. आज भी आर्मी के साथ if you look at ORP, look at certain things which are happening, which are unfair, actually unfair. वो लेगेसी तो वही है. सर, दैट इज द प्रॉब्लम विद डेमोक्रेसी सर. इवन इवन अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स में देखो, उनके बेचारे वेटरन्स, कितने उनके वॉर्स उन्होंने लड़ी हैं, बट उनके वेटरन केयर इज सो बैड. उनका बेचारे रुलते रहते हैं. मोस्ट ऑफ देम एंड आपने अप बीइंग. आपने आज स्टेटमेंट पढ़ा ऋषि सुनाक का जी. वेटरन्स के बारे में. जी. He says टाइम विंटर्स आ रही हैं, बट वेटरन्स आर ऑन द रोड. वो होमलेस हैं काफी सारे, हाँ सर. फैमिलीज टूट जाती हैं ना. इंडिया में क्या है कि इंडियन कल्चर में हमारी फैमिली, हस्बैंड दूर भी रहता है तो भी फैमिली चलती है. पहले जी. जॉइंट फैमिली सिस्टम थी, संभाल लेते थे. आज भी दैट बॉन्डिंग, साथ फेरे का कॉन्सेप्ट है. बाहर तो ऐसा नहीं है. इफ यू मिस कपल ऑफ फ्यू इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन लाइफ, दे से कैरी ऑन. ही सेज while veterans are on the road and winters are approaching, but since veterans have seen tough lives in their army days, I'm sure they'll be able to survive winters. This is Rishi Sunak today. तो ये दे. इंग्लैंड में वही हाल है. तो डेमोक्रेसी, यू आर राइट. आई हाँ. थिंक ये ट्रेडमार्क है. दिस दिस इज इज अ कर्स ऑफ कंपल्शन. डेमोक्रेसी दैट द पॉलिटिशियंस जो होते हैं. वन थिंग मैंने नोटिस करा है सर कि दैट ये, आई मीन, एंड नो पार्टी इज दिस थिंग. वन थिंग आई हैव नोटिस इज दैट द इन्वॉल्वमेंट इन पॉलिटिक्स जो बहुत ज्यादा है. अगर आप यूक्रेन में भी देखिए क्या हो रहा है, लोग मर रहे हैं. इट्स अ पॉइंटलेस वॉर. लड़ी जा रहे हैं, लड़ी जा रहे हैं, लड़ी जा रहे हैं. हारना तो है, बट कितनी जोर से हारना है वो अभी सोच रहे हैं. या अभी that is something which is very interesting. And Venki sir, thank you so much. I think आपका first and foremost for your contribution. And sir ने एक ये Venki sir ने एक ये line लिखी है which I personally agree with. Good judgment comes with experience, and experience comes from poor judgment. Despite humiliation, we should feel thankful to the Chinese for making us what we are today. but like you said, did we learn our lessons? Chinese taught us a lesson in 62. We didn't learn anything. अभी 2012 से 2012 में आई वाज पोस्टेड इन लद्दाख, द कोर हेडक्वार्टर. उस टाइम भी इंट्रोड्यूशन हुआ था जी. डैम चौक चूमूर में. और जब चुमुर. ऊपर रिपोर्ट गई, ऊपर से बोला गया कि जस्ट डोंट लेट इट कम टू मीडिया, जस्ट हैंडल इट. तो रोड्स तो अब बनी है पिछले 5-6 साल में.
ये गलवान का जो इशू हुआ क्यों हुआ है? बिकॉज वी आल्सो स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग रोड्स एंड ब्रिजेस। तो 62 के बाद ठीक है, आपने रिपोर्ट डिक्लासिफाई नहीं की, प्राइम मिनिस्टर भी चले गए, दूसरे आ गए। शास्त्री जी वॉज ब्रेव प्राइम मिनिस्टर टू मच बेटर देन दैट वे, नेशनलिस्ट। उसके बाद आयरन लेडी आई, फिर कितने आए कितने गए, और ऊपर हमारी सड़कें नहीं बनी, अब बन रही हैं और अभी तकलीफ हो रही है फिर। अभी आप देख सो लीजिए सर, यू इतने आर राइट, इतने लेसन तो दिन सिखाया बाद। चाइना ने, पर हमने उसको बस्ते में डाल के बंद कर दिया, जी, लॉकर में डाल दिया। वी डिडंट एक्ट ऑन इट। मैं तो सर आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ वन थिंग। 62 में अगर हम अपनी एयरफोर्स यूज करते एंड चाइनीज को सीधा करते, आज हमारे हमारे सामने आंखें उठाने की उनके में जरूरत नहीं होती। बिकॉज इवन नाउ विद द काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास बिल्कुल। जो है और जो हम लोग बना रहे हैं, उससे वो अभी भी घबराते हैं। आदि आपकी आवाज कट रही है। आई कुड मेक आउट कि 62 में एयरफोर्स यूज करते हैं, यस रिजल्ट वुड हैव बीन डिफरेंट। जब वॉर शुरू हुई है ना, विच विल कम टू मे बी इन सम अदर सेशन, उस टाइम चाइना वाज सो स्केर्ड ऑफ इंडियन एयरफोर्स विच हैड ऑर्डर नॉट टू फ्लाई, कि दे केम विद हेवी एयर डिफेंस। ये जितने रीजन में थांगला वांगला की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे उन्होंने पूरी एयर डिफेंस लगा रखी थी, बट एयर डिफेंस तो गन्स वुडंट हैव मैटर्ड। आज भी अगर आप पीछे एक रिपोर्ट आई थी ना, वेयर आज आर एयरफोर्स इन ईस्टर्न लद्दाख हैज एज ओवर चाइनीज एयरफोर्स, दैट ग्लोबल रिपोर्ट which comes. So one thing is to have a capability, second thing is to have a will. So we had a capability in 62, and अगर आज चाइना थोड़ा रुका हुआ है तो some credit should be given to our air capability today, because it's going to be a joint war. I mean, nobody fights in isolation. तो you're right, 62 में अगर किया होता तो रिजल्ट would have been different. इनफैक्ट उससे पहले ही अगर 21 G2119 हम्म। के ऊपर बम्बार्ड कर दिया था, बिकॉज हमारे इलाके में बन रहा था वो। 1956 में जब उनका प्राइम मिनिस्टर यहाँ आया, उसने क्या कहा कि आप तवांग हमें दे दो और आपको मैं एक्साइचिन दे देता हूँ। एंड पूरा एक्साइचिन नहीं, पार्ट ऑफ इट। क्यों? जो उनको बनाना था हाईवे तो बना लिया, बाकी तो एक्साइचिन इज वेस्ट लैंड। इफ यू लुक एट मार्समिकला, हॉट स्प्रिंग्स एंड आगे कोंगोकोला एंड ऑल दिस एक्चुअली वेस्ट लैंड, गलवान, दीज आर नॉट। जब हमने फॉरवर्ड पोस्टर शुरू किया था ना हिम्मत सिंह जी कमेटी के बाद, उस टाइम भी हमने देपसांग, हॉट स्प्रिंग्स, गोगरा, ये सब छोड़ रखा था, क्योंकि वहां तो तीला नहीं उगता। तो पंडित जी ने बाद में कहा था ना कि वहां तो एक घास का तिनका नहीं उठता, और किसी ने कहा सर आपके सिर पे भी नहीं उगता बाल, तो क्या करें, सिर काट दें? तो दैट्स हाउ इट वाज। अगर हम, जब उसने हाईवे बनना शुरू हुआ था, उस टाइम एक बॉम्ब भी फेंका होता, प्रॉब्ली थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। हुआ ये कि वो आते गए और उन्होंने देखा इनको प्रॉब्लम ही नहीं है। वो राइस, आप चाइना को टिबेट पे प्रोटेस्ट कर रहे हो, साथ में राइस भेज रहे हो उनको। तो आप, अगर आप अपने आप को, यू जस्ट बिकम माओ फॉर अ मिनट एंड देन यू लुक एट अस इंडिया, नाउ व्हाट यू डू व्हाट दे डिड। आई इनफैक्ट आई चाइनीज आर व्हाटएवर दे आर, मैं तो चाइना का सी हमेशा राइटिंग में स्मॉल लिखता हूँ आफ्टर कोविड, इन प्रोटेस्ट, कि चाइना डजंट डिजर्व एस कैपिटल सी। बट द फैक्ट रिमेंस, जब हम खुद ही उनको ये कुछ प्लेट पे डाल के देंगे तो करेंगे ना यार। बिल्ली को दूध पे बिठाओगे तो बिल्ली तो मुंह मारेगी। वही हुआ। ऑन दैट नोट सर, थैंक यू सो मच। आई मीन आपको मैंने आई हैव बीन ट्रबलिंग यू जब आप ट्रैवल कर रहे हो, एंड गाइज आई मस्ट से दैट सर ने एक बारी भी मना नहीं करा। एंड जहां पर भी हैं, पिछली बारी भी सर इधर उधर भाग भाग के सर ने किया, इस बारी भी किया, बट लेट मी जस्ट कॉम्प्लीमेंट ऑन द स्टोरी टेलिंग कैपेबिलिटी सर। आई थिंक जितने लोग हैं यहाँ पर, वो एक चीज ये तो बोलेंगे बोलेंगे कि बहुत स्टोरी टेलिंग आपका, द वे दैट यू टेल द स्टोरी इज, and you actually feel that you're sitting in front, and in some places, certain places, I'll admit मेरे को थोड़ा गुस्सा भी चढ़ रहा था। तो one can actually kind of feel that the aggression that ठीक नहीं हुआ, whatever it is, but anyways I would still like to say कि ये हमारी reality है, हमारी हिस्ट्री है, और हमको पता होना चाहिए जहां पर हमने या मिस्टेक करी है, जहां पर हमने चीजें ठीक से नहीं करी, हमको पता होनी चाहिए, ताकि गवर्नमेंट सीखे ना सीखे, आज हम वी आर द पॉपुलस, वी आर द प्रॉब्ली द फ्यूचर, एंड आर फ्यूचर जनरेशन जो हमारे सामने आएंगी, उनको तो पता होना चाहिए जो चीज हमको 30 साल के बाद में पता चली है, अगर उनको 20 साल में पता या चलेगी, अगली को 10 में पता चलेगी, थिंग्स विल बिकम बेटर। एंड हिस्ट्री के बारे में तो या सर, थैंक यू, दैट्स ऑल आई कैन से। ये वी विल ब्रेक डाउन दिस बैटल आदि, थैंक यू 62 के टन। बारे में। या विल डू दैट।
Firstly, once again, I apologize for this disruption, but at the same time, yes, we are making an effort to, जो भी जितना भी हम communicate कर पाएं. Adi, you're doing wonderful job. Youngsters, yes, India. Every time I interact with youngsters, I have one feeling: India is safe. We are safe. Future is safe. Uh, Keep it up. I know what kind of involvement you have in these the videos you started making, short videos and these long videos. They take up so much of your time. Thanks a ton, and all the best to you and all those who took out time and despite the disruption, they heard our stories. Thank you once again. Thank you. Thank Guys, you. I will, once this video becomes live, I will try and edit this to make it into a this thing without the disruptions. And so that वो continuity रहेगा and story सुनने में थोड़ा मजा आएगा. Thank you so much. All of you guys are mentioning this. It's been an amazing session. Venki sir, Miss Chitra, uh, Mr. Yadgiri, so many people, Chirag, all of you have said it's a great session. I agree with you. Sir ka jo knowledge hai and the way that he tells the story is really amazing. Guys, I will catch up with you probably tomorrow morning with regards an update of my daily update of Imran Khan, some hot and spicy story that I'm researching on. A lot of us kind of have got our own opinions. Let's see, I've kind of collected most of the prevailing opinions. Uska kya juice nikalta hai kal subah dekhenge. Till then, guys, Jai Hind. And before I sign off, sorry, like, subscribe, hit the bell icon, and of course, yes, if you can, do contribute to the depth of effort up. You can become a member by clicking the join button. आप लोग also, you can send a super sticker by clicking thanks, or you can directly contribute to me by UPI. Thank you so much. Jai Hind.